all of you on the match point. 16 teams have made it to the knockout of the World Cup. The FIFA World Cup 2022 in Qatar. And finally, we have 4 semi-finalists and now the big ones. The big guns, South America versus Western Europe. The best versus best. What we say El Clasico. The World Cup has been narrowed down to the France versus Argentina, Mbappe versus Lionel Messi. The game has been set and all the eyes on the World Cup Grand Finale. देखना ये है कि ये वर्ल्ड कप अब कौन सी टीम लेके जाएगी. क्या ये साउथ अमेरिका के हिस्से में आएगा या वेस्टर्न यूरोप इस बार भी मुकाबले की बाजी जो है वो अपने सर ले जाएगा. लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा. लास्ट वर्ल्ड कप है लायनल मेसी का. ही इज प्लेइंग द लास्ट फाइनल्स. लॉट ऑफ ग्रेट प्लेयर्स. उनका ये लास्ट वर्ल्ड कप था जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो का लास्ट वर्ल्ड कप, ल्यूका मॉड्रिक का ये लास्ट वर्ल्ड कप, लायनल मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप. लायनल मेसी बहुत से रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं. आपको ये बताऊंगा इस प्रोग्राम के अंदर. लायनल मेसी व्हेन ही विल स्टेप इनटू द ग्राउंड, लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स विल बी एट द स्टेक. एक ऐसा रिकॉर्ड भी आएगा कि जब लायनल मेसी अभी बॉल को टच नहीं करेंगे और विसल अभी ब्लो नहीं होगी फाइनल गेम के लिए, और उससे पहले ही जब वो वार्म अप करके ग्राउंड में दाखिल हो जाएंगे तो एक रिकॉर्ड टूट जाएगा और वो रिकॉर्ड होगा 2256 मिनट का. ये रिकॉर्ड कैसा रिकॉर्ड है ये आपको मैं आगे चल के बताऊंगा. लेकिन it's just a question of how many records he is going to break. Lionel Messi at its best. अर्जेंटीना के फुटबॉल सॉकर फैंस के लिए इससे ज्यादा खुशी का मौका नहीं हो सकता. लायनल मेसी के बारे में आपको मैंने बताया था कुछ दिन पहले, आपको मैंने फीड दी थी कि लायनल मेसी और बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान बहुत ही खुशकिस्मत कप्तान हैं. दोनों कप्तान वर्ल्ड कप का पहला मैच हारने के बाद फाइनल मैच खेले. लेकिन थोड़ा सा मैच को पीछे लेके चलते हैं और बताते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप में अ ड्रीम केम टू एन एंड. अ ड्रीम रन एंड द ड्रीम चेज टू द वर्ल्ड कप. फतह की देवी जिसको हम कहते हैं 36 कैरेट गोल्ड की जो ये ट्रॉफी है फीफा वर्ल्ड कप की, जो लेटेस्ट ट्रॉफी है, जो 1970 के वर्ल्ड कप के बाद, वर्ल्ड कप ट्रॉफी के चोरी होने के बाद दोबारा मंजर आम पे आई थी. इसको ले जाने वाले मुल्कों की जो लड़ाई है जो होती है इस ट्रॉफी के पीछे, उसका ड्रीम रन करने चली थी मोरक्को की टीम. बट वेरी अनफॉर्चुनेट दैट मोरक्को की टीम बहुत अच्छा खेली. हार्ड लक टू द मोरक्कन बॉयज, बट यू प्लेड रियली वेल एंड यू वन द हार्ट ऑफ द पीपल अराउंड द ग्लोब फॉर द फुटबॉल वर्ल्ड कप. मोरक्को फिनिश 4th in the World Cup. Croatia once again coming to the 3rd spot and once again remaining into the top 3, and Morocco come to the 4th spot. The best ever position by any African nation since the Cameroon 1990 dream runs. African nations का जो maximum run रहा है सेनेगल हो या Cameroon, best ever run which the African team has made. Morocco came to this tournament while ranking 22nd in the world. नोट कीजिएगा ये बात कि 22वां रैंक था उनका फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग के अंदर जब उनका फाइनल 32 के अंदर उनका नॉमिनेशन हुआ. एंड देन दे टॉप द ग्रुप व्हिच वाज featuring Croatia and Belgium, and later on they beat the superpowers Spain and Portugal. Hats off to them and take a bow for Morocco. What a dream run and what a great World Cup for them and for their goalkeeper who has not conceded the goal game. They were only beaten by eventually the winners and the runners up of 2018 World Cup. France and Croatia were the two nations who beat them, and one was the World Cup winner of the last time and one was the runner-up. Congratulations to now the Luka Modric for playing his last World Cup. What a dream run for him and for Croatia.
a population of some very few millions, and they have won the heart of their around the country of Croatia and around the globe. The people who are loving the football and the way the football has been played. They finished third in this World Cup, and what an end to the journey. We showing the picture of stats of Luka Modric, possessions, the possession below the final whistles, lead towards the goal, the strikes. He was carrying the Croatia to the top ranks in this World Cup. And now, if I remind you that 4 years ago, they finished second in the World Cup. And while finishing second in the World Cup, they were also heroes at that time. Luka Modric was very unfortunate that he couldn't end his career as a FIFA World Cup champ, but this was in the 4 million population. I think this was the achievement which most of them cannot do in their lifetime. So what Luka did, Sofyan Amrabat, he won the positions 57 times at the 2022 World Cup. This is most by any African player in a single World Cup game. Again, hats off to the Morocco. And this achievement for Sofyan was since the 1966 World Cup, which the English team has won the last time in the Wembley, जहां पर ट्रॉफी को चोरी कर लिया गया था और पिकल्स नामी कुत्ते ने उस ट्रॉफी को दोबारा ढूंढ निकाला था. तो ये उसी वर्ल्ड कप की स्टोरी है. That was the last time when any African player was having such possession. So that possession record has been shattered in this World Cup, record-breaking tournament for his country, and Morocco has beaten several records at this World Cup in Qatar. Most top 3 finishes, if I go to the World Cup since 1998, के top 3 के अंदर finish करने वाली टीमें, तो जो सुपर पावर्स हैं वर्ल्ड कप की, यूरोप की जो सुपर पावर्स हैं, फ्रांस और जर्मनी, they are sharing the last 4 positions 4 times each. Look at the power, giant power of the football powerhouses. Germany is sharing with the France 4 times the last 4, and next comes Croatia, which is sharing just the mere 4 million population, and they are sharing the 3rd spot with the 3 appearances in the last 4 since 1998. Now, if I go to this World Cup, which is now coming, I'm coming towards my favorite part. Now, the goal assist, a new record now. Messi has assisted the World Cup goals, the record 8 times, and Pepe is just behind Messi with a 7 assists. And who knows that this record has been broken up by the Pepe, or still Messi will take a control. And then if you go with the most goals, now comes the one of my favorite part. Who will win the race of the Golden Boot? Golden Boot में Messi Pepe से एक गोल आगे, Pepe के साथ बराबर है. Messi और Pepe दोनों 5-5 गोल्स के साथ लीड कर रहे हैं. देखना ये है कि who will finish the race of Golden Boot. And then the most man of the match awards, जहां पर मेसी लीड कर रहे हैं पेपे के साथ. क्या जबरदस्त और घमसान की लड़ाई होने जा रही है. With the 4 man of the match awards with Lionel Messi and 3 awards with Kyle Pepe. पेपे 1 अवार्ड पीछे होंगे मेसी से. मेसी के हिस्से में 4 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स हैं. If Lionel Messi plays at least 23 minutes in the last game, in his final game, and he does not go out after getting injured or after getting substitution, he will break the record of the great midfielder of Italy, Paolo Maldini, जिनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने 2226 मिनट वर्ल्ड कप पे ग्राउंड पे हाजिरी दी है. अगर लायनल मेसी कल 23 मिनट्स ग्राउंड पे रुक जाते हैं, तो पाओलो माल्दीनी का ये 30 साल पुराना रिकॉर्ड जो है विद द मोस्ट टाइम स्पेंट ऑन द फुटबॉल वर्ल्ड कप ऑन द ग्राउंड इन एनी एक टूटने जा रहा है. अब एक अगली चीज जो कि गोल्डन बूट के बाद मेरा सबसे बड़ा इंटरेस्ट होता है कि क्या लायनल मेसी एक और रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं कि नहीं बनाने जा रहे, और वो रिकॉर्ड क्या है
कि लायनल मेसी एक एक्सक्लूसिव क्लब जो है वो ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, जिसके अंदर आप बैलन डोर, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप, गोल्डन बूट, ये तमाम के तमाम रिटेन करती हैं, क्योंकि इससे पहले जिन अजीम खिलाड़ियों ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के अंदर ये सब अचीव किया है वो ज़िनेडीन ज़िडान, जिनका ताल्लुक फ्रांस से है, 10 नंबर की शर्ट पहनते थे, 10 नंबरी थे फ्रांस के, उनके पास ये रिकॉर्ड है। प्यालो रॉसी, मशहूर ज़माना 1982 के फुटबॉल के 82 वर्ल्ड कप की हीरो। इसके अलावा फ्रांसिस बेकनबायर 1974 वर्ल्ड कप, मुलर जिनका ताल्लुक जर्मनी से है फ्रांसिस बेकनबायर के बाद, और इसके अलावा ब्राजील के 3 खिलाड़ी जिसमें रोनाल्डिनियो, रिवाल्डो और काका शामिल हैं, इन तीनों के पास ये यूनिक रिकॉर्ड है। तो क्या लायनल मेसी ये रिकॉर्ड बनाने में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे? यूरोपियन कप, वर्ल्ड कप और बैलन डोर एक ही साल में और एक ही साल में पोजीशन करने वाले लायनल मेसी इस एलीट क्लब का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि लायनल मेसी के बाद इस वक्त यूरोपियन कप और बैलन डोर के अवार्ड्स हैं। अगर वर्ल्ड कप वो जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो वो इस यूनिक क्लब का हिस्सा बनेंगे। वन ऑफ माय फेवरेट्स प्यालो रॉसी, उनके पास 1982 का जब वर्ल्ड कप था तो उनके पास 1982 का बैलन डोर अवार्ड भी था, और इसके अलावा उनके पास 1985 का यूरोपियन कप भी था। वो इस लिस्ट में काफी देर चमकते और दमकते रहते। देखना यह है कि लायनल मेसी क्या कर। थोड़ी सी बात करूंगा जल्दी गोल्डन बूट की। नो वन इन द फुटबॉल हिस्ट्री हैज एवर अचीव्ड टू टेक द गोल्डन बूट ट्वाइस। क्या लायनल मेसी इस रिकॉर्ड को, इस अमेजिंग रिकॉर्ड को बराबर करने जा रहे हैं या तोड़ने जा रहे हैं, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। आज तक फुटबॉल की हिस्ट्री में गोल्डन बूट कोई भी शख्स 2 दफा नहीं जीत सका। गोल्डन बूट की जो रेस है उसको जो ब्राजीलियन जो है उनके बारे में बताता चलूं कि कोई भी शख्स इसको डबल नहीं कर पाया आज तक। 1930 से लेके 2022 तक 112 साल फुटबॉल की तारीख में आज तक गोल्डन बूट डबल नहीं हो सका। लेकिन ब्राजील की टीम वो टीम है जिसने रिकॉर्ड 6 टाइम्स गोल्डन बूट को पिक किया है। ब्राजीलियंस आर द टीम विद द मोस्ट पिक्स विद द गोल्डन बूट। उनसे ज्यादा गोल्डन बूट लेके कोई भी खिलाड़ी जो है नहीं गया। इंटरेस्टिंग आपको बताते चलूं, अगर आप नहीं जानते कि क्या एक ही साल में एक ही वर्ल्ड कप में क्या कभी ऐसा हुआ है कि गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल ये एक ही प्लेयर ने जीते हो? आप यकीनन नहीं जानते होंगे। मैं आपको बता ही देता हूं कि मैच पॉइंट में आपको बताएंगे कि ऐसा हुआ है। फुटबॉल की तारीख में एक ही दफा ऐसा हुआ है। फुटबॉल की 115 साल हिस्ट्री के अंदर फीफा वर्ल्ड कप 1982 के अंदर इटली के स्ट्राइकर प्यालो रॉसी, जिनका ये वर्ल्ड कप जिनके नाम से याद किया जाता है, क्वार्टर फाइनल तक उन्होंने कोई गोल नहीं किया था, और क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ब्राजील जैसी मजबूत टीम और सेमीफाइनल्स में उन्होंने फ्रांस और ब्राजील की टीम को हराने के बाद जर्मनी की टीम को शिकस्त दी थी। और वो पहला साल और आखिरी साल था जब किसी खिलाड़ी ने फीफा वर्ल्ड कप के एक ही साल के अंदर गोल्डन बूट का अवार्ड भी जीता था और गोल्डन बॉल। Golden ball goes to the best footballer of the World Cup, while the golden boot goes to the top scorer. प्यालो रोसी ने सिंगल हैंडेडली गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल का अवार्ड जीता। लायनल मेसी प्लेज टुमारोज गेम। वो एज अ कैप्टन लूथर मैथ्यूज, जिन्होंने 1990 का वर्ल्ड कप पिक किया था जो इटली में खेला जा रहा था, इटालिया 90, जहां पर उन्होंने डियागो मैराडोना की डिफेंडिंग चैंपियंस को शिकस्त दी थी एक लास्ट मिनट डिस्प्यूटेड पेनल्टी पे, जहां पर 3 नंबर की शर्ट पहने आंद्रे ब्रेमी ने जर्मनी की जानिब से गोल स्कोर किया था। अगर कल लियोनेल मेसी गेम खेलने में कामयाब हो जाते हैं तो वो लूथर मैथ्यूज की 25 अपीयरेंसेस का एज अ कैप्टन फुटबॉल वर्ल्ड कप का मैक्सिमम अपीयरेंस का रिकॉर्ड भी शैटर कर देंगे। अभी तक लूथर मैथ्यू के पास वो रिकॉर्ड है विद द मोस्ट अपीयरेंसेस इन द वर्ल्ड कप हिस्ट्री। ये रिकॉर्ड भी लियोनेल मेसी का अपने नाम करने जा रहे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी, जिनको एक दूसरे का सबसे बड़ा इस सदी का कंपेटिटर माना जाता है,
दोनों के अंदर बेइंतहा रिवलरी पाई जाती है। लेकिन शायद आप ये जानना चाहते हो कि दोनों के फुटबॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, क्योंकि दोनों का फुटबॉल कैरियर खत्म हो गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फुटबॉल कैरियर खत्म हो गया है। आइंदा वाले बच्चे जो है वो फुटबॉल की हिस्ट्री बुक्स पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम सुना करेंगे, और आप लियोनेल मेसी को कल अपनी लाइफ में आखिरी मर्तबा विटनेस करने जा रहे हैं व्हाट द प्लेयर इज, व्हिच इज द रीबर्थ ऑफ मैराडोना। तो अगर मैं आपको कंपैरिजन देना चाहूं तो एक शॉर्ट कंपैरिजन आपके सामने आ रहा है, पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो विद 725 गोल्स while Lionel Messi with 789 goals, Cristiano Ronaldo with 216 assists for the unique goals, while Lionel Messi with 348 assists, जबकि Cristiano Ronaldo with 31 trophies overall in the World Cup, while the Argentinian Lionel Messi with 41 trophy. Clearly at every ground, Lionel Messi single-handedly beating Cristiano Ronaldo. And again in the 2022, Cristiano Ronaldo is nowhere right now with the Portugal, but Lionel Messi with a dream run, yet again alive in the Football World Cup, even after losing the first game against the Minos, Saudi Arabia. Argentina France के दरमियान एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है अब से कुछ घंटे बाद। आप जानना चाहते होंगे कि इन दोनों के रिकॉर्ड्स क्या बोलते हैं, तो ऑब्वियसली डॉक्टर अदनान विल टेल यू अबाउट द रिकॉर्ड्स हेड टू हेड व्हेन इट कम्स टू द World Cup matches or any other matches. Argentina will take on France. What the record says, 12 games, 12 गेमें दोनों के माबैन हुई हैं, जिसमें से 6 गेम्स जीता है अर्जेंटीना, जबकि 3 मरतबा फ्रांस की टीम जीतने में कामयाब हुई है, जबकि 3 मैच जो है वो ड्रॉ हो गए हैं। जब ये पहली मरतबा आपस में मिले थे तो दैट वाज द 1930 वर्ल्ड कप, जहां पर अर्जेंटीना की टीम ने फ्रांस की टीम को 1-0 से शिकस्त दे दी थी। और जो सेकंड वर्ल्ड कप हुआ था 1934 का, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी, जब मशहूर ज़माना ट्रॉफी को उनके प्राइम मिनिस्टर ने, इटली के प्राइम मिनिस्टर ने जूते के डब्बे में छुपाया था ताकि वो चोरी ना हो जाए। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब कोई टीम बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीती थी 1934 से 1938। तो वो जो वर्ल्ड कप था 1934 का, वो पहली दफा थी जब फ्रांस की टीम ने अर्जेंटीना के साथ ड्रॉ खेला था 0-0 का। और जब आखिरी मरतबा दोनों के दरमियान मुकाबला हुआ दैट वाज द 2018 वर्ल्ड कप, तो वहां पर फ्रांस की टीम ने एक बहुत ही जबरदस्त मुकाबले के बाद, जहां पर बड़ी एक डिस्प्यूटेड पेनल्टी भी दी गई थी, 3 के मुकाबले में 4 गोल से अर्जेंटीना की टीम को शिकस्त दी थी। लास्ट टाइम the two teams met each other, that was the 2018 World Cup, and that was the round of 16 knockout game, जहां पर 7 गोल्स हुए थे और 8 कार्ड्स दिखाए गए थे, and France defeated Argentina 4-3 and ultimately making it to the finals to meet Croatia and ultimately lifting the cup. क्या फ्रांस की टीम एक दफा दोबारा यही मुजाहरा करेगी और ये मैच को ले जाएगी, या अर्जेंटीना की टीम का ये रिवेंज मैच होगा? ये हमें देखना होगा कि ये रिवेंज होता है कि नहीं होता। देयर इज अ रियल डाउट, और एक बड़ी खतरनाक न्यूज बताता चलूंगा आपको इस मैच के हवाले से। अगर आप फ्रांस के फैंस हैं तो एक बड़ी ही डेंजरस और बड़ी बुरी खबर मेरे पास है। ओलिवर जिराल्ड की अवेलेबिलिटी कल के मैच में बहुत मशकूक हो गई है, क्योंकि उनका जो नी स्ट्रेन है वो बढ़ता जा रहा है, और ये बड़ा मशकूक हो गया है कि जिराल्ड जो है वो कल का मैच अपनी नी इंजरी के बायस खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। डेस्ट चैंप से जब पूछा गया तो डेस्ट चैंप ने बड़े गुस्से से रिपोर्टर को कहा कि दिस इज अ स्टूपिड क्वेश्चन, आई डोंट वांट टू आंसर। तो लगता है कि वो दिमागी तौर पे अभी भी डेस्ट चैंप जो है बड़े अपसेट हैं, और लगता ये है कि जिराल्ड ये मैच नहीं खेलेंगे। अगर नहीं खेलेंगे तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा अर्जेंटीना की टीम के लिए। कल का मैच खिलाएगा कौन? वर्ल्ड कप क्रिकेट जब होता था तो होता था स्टीव बकटर खिलाएंगे या डेविड शेफर्ड खिलाएंगे। कल का मैच कौन खिलाएगा? बड़ा खिलाड़ी खिलाएगा, बड़ा रेफरी खिलाएगा। कौन खिलाएगा? पोलिश रेफरी खिलाएंगे, ज़ाइमोन मार्कोनेक। इनका ये मैच होगा कल। फाइनल मैच की विसल जब बजेगी तो ये पोलिश रेफरी ये अपना विसल बजाएंगे। पोलिश रेफरी विल बी द रेफरिंग अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस। इनकी उम्र 41 वर्ष है, 41 इयर्स ओल्ड है।
स्टेक और चावल के ये बहुत शौकीन हैं और वेजीज को भी बड़े शौक से खाते हैं। ट्रैवलिंग इनका पसंदीदा मशगला है। फोटोग्राफी के ये शौकीन है। पर्सनल फुल फ्रेम कैमरास लेके घूमते हैं दुनिया के गिर्द और इनको फुटबॉल सीन्स की और स्पेक्टेटर्स की फोटोग्राफी करने का बहुत शौक है। 41 साल उम्र है। इनकी थर्ड गेम होगी ये इस वर्ल्ड कप के अंदर जो कतर में खेला जा रहा है। अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ये गेम खिला चुके हैं। फ्रांस वर्सेस डेनमार्क खिला चुकी हैं। इन्होंने इस फाइनल से पहले इस वर्ल्ड कप पे 2 ही गेम्स खिलाई हैं और उसमें एक में अर्जेंटीना इन्वॉल्व था और एक में फ्रांस था। तो ये दोनों टीमों को बड़ी अच्छी तरह जान चुके हैं कि दोनों क्या हरबे इस्तेमाल करती हैं अंपायर को डिसीव करने के लिए टैकलिंग के दौरान जब फॉरवर्ड लाइन टैकल करती है। और ये भी बता दूं आपको कि ये 1990 इटालिया वर्ल्ड कप फाइनल के बाद ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि पॉलिश रेफरी जो है वो फाइनल खिलाएगा। आखिरी मरतबा जब किसी पॉलिश रेफरी ने फाइनल कराया था तो दैट वाज द 1990 वर्ल्ड कप और उसमें भी अर्जेंटीना इन्वॉल्व था और अर्जेंटीना की टीम को लास्ट 2 मिनट के अंदर जो रेड कार्ड दिखाए गए थे वो पॉलिश रेफरी ने दिखाए थे। बच के रहना रे बाबा, ये कहने में मुझे कोई याद नहीं है। उस वर्ल्ड कप के लास्ट 2 मिनट्स बड़े क्रेजी मिनट से जब 0-0 से गेम ड्रॉ हो गई थी। अर्जेंटीना की टीम को लास्ट 2 मिनट्स में 2 रेड कार्ड पड़े जिसके ऊपर आंद्रे ब्रेवी ने स्कोर करके जर्मनी को एक काबिल तस्खीर लीड दी 1-0 और एक रिवेंज गेम में 1986 के बाद अर्जेंटीना की गेम को शिकस्त दे दी लूथर मैथ्यूज की जर्मन टीम ने और ये वर्ल्ड कप ले उड़े। जाते जाते आपको बता दूं कि आपको मैंने बताया था कि लियोनेल मेसी और बाबर आजम के दरमियान एक कदर मुश्तरक है। वो कदर क्या मुश्तरक होगी कि आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट गेम बोथ द कैप्टन्स मेड टू द फाइनल। बाबर आजम तो मेलबर्न का मैच हार गए। देखना यह है कि क्या लियोनेल मेसी अपने हाँ के मेलबर्न का मैच जीतने में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। एक नई तारीख रकम करने जा रहे हैं कि नहीं करने जा रहे। और आपको मैं ये बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले भी हुआ है। 1990 के वर्ल्ड कप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वहां पर पहली गेम जब अर्जेंटीना की हुई तो वो कैमरून के खिलाफ हुई थी। कैमरून इज द फर्स्ट नेशन जो क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी, अफ्रीकन नेशन, और बड़ी टफ गेम खेली थी और इंग्लैंड के खिलाफ एक्स्ट्रा ओवर तक गेम ले गए थे और वहां पर हारे थे। पहली गेम में उन्होंने अर्जेंटीना की टीम को शिकस्त दी थी। 67वें मिनट के अंदर लीड ली थी और उमम बायोक ने राइट विंग से अटैक करके अर्जेंटीना के खिलाफ गोल किया था। और उसके बाद मुझे आज भी याद है कि डियागो मैराडोना और करीजिया उन्होंने बहुत कोशिश की थी इक्वलाइज करने को, लेकिन गोल दैट वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और आई थिंक इस वर्ल्ड कप पे हिस्ट्री रिपीट हुई। सऊदी अरेबिया बीट देम एंड दिस वाज द अदर वर्जन ऑफ आई थिंक कैमरून एंड अगेन दे मेड टू द ग्रैंड फिनाले। लेकिन देखना ये है कि उस वक्त वो फाइनल हार गए थे जर्मनी के हाथों, लेकिन आज ये फ्रांस के खिलाफ जीत के हिस्ट्री को रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। प्रोग्राम को क्लोज करने का टाइम आ गया है, लेकिन जाने से पहले किलर फैक्टर, और आज का किलर फैक्टर जो है म्यूजिक ऑन हो चुका है। किलर फैक्टर ये है कि फुटबॉल अर्जेंटीना के अंदर जब शुरू हुआ था तो वो अर्जेंटीना के बाशिंदे नहीं खेलते थे, बल्कि अर्जेंटीना वाज वन ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी। और अर्जेंटीना के अंदर ब्रिटिश जो इन माइग्रेंट्स आए थे उन्होंने वर्ल्ड कप का आगाज किया था। जो अर्लीस्ट ट्रेसेस मिलते हैं वो 1900 में मिलते हैं जब अर्जेंटीना के अंदर फुटबॉल स्टार्ट हुआ। तो दैट इज द 1900 सेंचुरी जहां पर जब वो फुटबॉल खेलते थे। और द यंगेस्ट एवर वर्ल्ड कप कोच, आपने देखा होगा कि कोच अक्सर बड़ा पावरफुल चीज होती है। कोच और मैनेजर फुटबॉल के अंदर, क्रिकेट के अंदर इतना पावरफुल नहीं होता। और कोच जब गुस्सा करता है तो फुटबॉल की पूरी टीम हिल जाती है, चाहे वो लेवल लियोनेल मेसी का हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का हो या डेविड बेकहम का हो। अर्जेंटीना के पास एक यूनिक रिकॉर्ड है। दिस इज माय क्लियर फैक्टर that they are having the one coach who was having the age of 27 years old till to the date. This is a world record of the youngest coach ever which Argentinian team was having, and he was Joan Jose Tramutola who managed Argentina in the 1930 World Cup. और इनकी मौजूदगी में अर्जेंटीना ने पहली मरतबा फ्रांस की टीम को 1-0 से शिकस्त दी थी। यही था हमारा किलर फैक्टर। अगर आप फ्रांस के फैन हैं तो गुड लक टू यू, अगर आप अर्जेंटीना के फैन हैं तो इक्वली मैच पॉइंट विशेस यू गुड लक फॉर द ग्रैंड फिनाले
of the FIFA World Cup, the most watched World Cup around the globe. And this, we are heading towards the V overs and the finals overs of the pre-match 2022 FIFA World Cup Grand Finale, when Argentina will take on France. Dr. Adnan says you goodbye from the studios. Take care and bye-bye.